آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے مقامی وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ 700 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد، گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس اور چائنیز کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ 2000 کیمروں کو 14 اگست تک فعال کر دیا جائے گا۔ 500 کیمروں کو دیگر ذرائع سے ٹھیک کروایا جائے گا۔ فیصل آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ منظور کر لیا گیا۔ 700 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد، گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز۔ اجلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی۔ چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم بارے بریفنگ دی۔ سیف سٹی اتھارٹی کے نئے سسٹم میں مشین لرنر ماڈل میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم کے تحت چہروں کی شناخت بھی ممکن ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس اور چائنیز کمپنیز کے درمیان سیف سٹی کیمروں کو فعال کرنے پر معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ نجی کمپنی سیف سٹی کا سامان 21 جون کو پہنچائے گی۔ 2000 کیمروں کو 14 اگست تک فعال کیا جائے گا۔ 500 کیمروں کو دیگر ذرائع سے ٹھیک کروایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ سے امن عامہ میں بہتری آئے گی اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہوگا۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ محمد عمران اسلم، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں مالی سال کا بجٹ 2023-24 پیش۔ کس کو کتنا فائدہ، کس کو کتنا نقصان، گفتگو کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم کے مشیر کامرس رانا احسان افضل خان کی سٹی 41 سے گفتگو۔ کہا ان مشکل حالات میں اس کو نیا ٹیکس فری بجٹ کہنا چاہیے۔ زراعت اور چھوٹے صنعتکاروں کو سہولیات دیں گے۔ اس پر دیکھتے ہیں محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ۔ مشیر وزیر برائے کامرس رانا احسان افضل خان نے حالیہ بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات کی اور سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مشکل حالات میں بہترین بجٹ پیش کیا گیا۔ تنقید کرنے والوں نے ہمیں دیا کیا تھا، گروتھ ریٹ بھی اچھی رکھی گئی ہے جس کو حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں اس کو نیو ٹیکس بجٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ رانا احسان افضل خان نے مزید کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، اس لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ زراعت پر اچھی قیمتیں اور اچھا فائدہ دیا گیا۔ چھوٹے صنعتکاروں، تنخواہ دار طبقہ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا گیا تاکہ قوت خرید بہتر ہو۔ آئی ٹی شعبہ اور نوجوانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، جو ایل ایس ایم سیکٹر ہے، اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ پھر دیکھیں یہ جو بجٹ ہے سیلری پیشہ لوگوں کا بجٹ ہے۔ اس میں سیلری کے لوگوں کو جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں یہ بجٹ جو ہے ہمارا کلیم ہے کہ یہ سیاسی بجٹ نہیں ہے، یہ رسپانسبل بجٹ ہے۔ رانا احسان افضل خان نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر بہترین بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے ایوب ریسرچ سینٹر میں ایپکا کے زیر اہتمام ایل پی آر میں ترمیم کی منسوخی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ شرکا کا ریٹائرمنٹ پر مراعات میں کٹوتی کی ترمیم واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ احتجاج کی قیادت صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ایپکا چودھری عبدالعزیز بھٹی نے کی۔ فیصل آباد کے ایوب ریسرچ میں ریٹائرمنٹ پر مراعات میں کٹوتی کی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ صوبائی ایپکا چودھری عبدالعزیز بھٹی نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ ڈویژنل صدر ایپکا فیصل آباد رانا سجاد احمد، ڈویژنل سیکرٹری جنرل مختار حسین بلوچ نے بھی شرکت کی۔ چودھری عبدالعزیز بھٹی کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی منسوخی تک احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے سال کے ریٹائرمنٹ پر ہمیں 12 تنخواہیں ملتی ہیں اور اس کے بعد جو چھٹی لیتا ہے سال کی، جو چھٹی لیتا ہے اس کو بھی یہ ریلیف ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایسے کیا ہے، ہمیں جو رننگ بیسک پہ اس پہ 12 تنخواہیں دی جاتی تھی، اب انہوں نے انیشل پہ 12 تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ یہ ملازموں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے۔ ڈویژنل صدر ایپکا فیصل آباد رانا سجاد احمد کہتے ہیں کہ مطالبات کی عدم منظوری پر دفاتر کا بائیکاٹ کریں گے۔ تمام ملازمین کو 5 سے 25 لاکھ تک کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ پنجاب والے پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ تینوں صوبوں میں گروپ انشورنس ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے۔ واد صوبہ پنجاب ہے جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور اس مرتبہ ایل پی آر جو 12 ماہ کی رننگ بیسک پہ دی جاتی تو انہوں نے وہ انشیل پہ کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ شرکا کہتے ہیں کہ امرات میں کمی قبول نہیں۔ ایل پی آر میں ترمیم کی منسوخی تک احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ خدا لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی،
कई माह से ADLR तैनात न होने से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना, इंतकाल के इंदराज समेत दीगर सर्विसेज मुतासर होने लगी। शहरियों का कहना था कि यहाँ पर मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन हालात में रेवेन्यू का काम शदीद अंदाज में मुतासर हो रहा है। सेंटर बनाने का मतलब ये था कि हमें फैसिलिटी मिले, हमें सहूलत मिले, और पटवार खाना इन्होंने ख़त्म कर दिया। पटवार खाना ख़त्म करने का मतलब ये था कि करप्शन ख़त्म हो जाए। खुदा वहाँ जानता है कि जब से ये अराजी सेंटर बना है करप्शन ऊपर गई है, और हमें अब याद आता है कि यार पटवार खाना ठीक था। 2 साल हो चले हैं मुझे ये इंतकाल मैंने करवाना है, तो अभी तक नहीं हुआ। पता नहीं क्या बार बार चक्कर लगा कर घर की हम मजदूरी करें या इन लोगों के पीछे भागे हम। PHA कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में 44 पार्कों की कैंटीन की नीलामी के लिए ओपन बोली का इनेकाद। नीलामी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर एडमिन PHA की सरबराही में हुई। PHA कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में 44 पार्कों की कैंटीन की नीलामी के लिए ओपन बोली का इनेकाद किया गया। नीलामी डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर एडमिन PHA की सरबराही में हुई। 44 पार्कों की नीलामी के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवार ओपन बोली का हिस्सा बने। 18 पार्कों को शेड्यूल रेट पर लगने वाले ओपन बोली के जरिए ठेका पर दिया गया। 10 मुख्तलिफ पार्कों के लिए किसी उम्मीदवार की जानिब से बोली नहीं दी गई। 6 पार्कों पर सिर्फ एक दिलचस्पी लेने वाले उम्मीदवार ने CDR जमा करवाई, जिस बिना पर बोली कमेटी की जानिब से इन 6 पार्कों की नीलामी का फैसला DG PHA के फैसले से मशरूत कर दिया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग फैसल सुल्तान का कहना था, पार्कों की कैंटीन ठेका पर दिए जाने से PHA को 2 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। क्रिसेंट पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, डी ग्राउंड, पिंटो पार्क, कैलाश पार्क की कैंटीन भी ठेका पर दी गई हैं। यहाँ आपको बताएं, जिले इंतजामिया फैसलाबाद और महकमा स्पोर्ट्स की खेलों में अदम दिलचस्पी, खिलाड़ियों की मुश्किलात कम ना हो सकी, सहूलियात के भुगतान पर खिलाड़ी खेल छोड़ने पर मजबूर हैं। मुसलसल नजरअंदाज करने पर मुतादिद खिलाड़ी दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस खिलाड़ी ने शहर बदल लिए। खेलों के मैदान और मुकाबले न होने से खिलाड़ी गेम्स छोड़ने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस कई खिलाड़ी खेलों को खैर बात कह चुके हैं। अपने शहर में खेलों की सहूलियात में कमी और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस शहर को छोड़ा। जिला इंतजामिया खेलों के मैदान आबाद करने में नाकाम है, हमेशा से है, लेकिन आला हुकाम की अदम दिलचस्पी इनके ख्वाब पूरे करने में सबसे बड़ी रुकावट है। अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद में बकरा मंडी आबाद हो गई। खूबसूरत बकरों से मंडी में रौनकें तो लग गईं, लेकिन कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। उधर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना। ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना WMC के लिए चैलेंज बन गया। फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर में बकरा मंडियां लगना शुरू हो गईं। खूबसूरत बकरों से मंडियों में रौनकें तो लग गईं, लेकिन जानवरों के बढ़ते रेट्स ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं कि रेट आसमानों को छू रहे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल होने लगा है, जबकि व्यापारी कहते हैं कि सारे साल की मेहनत सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे। ये 1,60,000 रुपए इसका मांग रहे हैं, ठीक है, और ये कुर्बानी करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसका 1,60,000 था, देने के लिए तैयार है, हम गाहक माल कम लगाए हम देंगे। इधर ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना है। इस हवाले से FWMC ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को आगाह कर दिया। फैसलाबाद में एक जाने तो ईद कुर्बान के लिए मंडियां सज गईं, तो साथ ही फैसलाबाद की सफाई सुथराई के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसाइल की कमी के सबब मुश्किल में आन पड़ी है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम अरूज पर पहुंच गए। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम हैं। खरीदारों को अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश में मुश्किलात। कहीं भाव ताव करते शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो कहीं व्यापारी मुनासिब कीमत ना मिलने की दुहाई दे रहे हैं। टोबा की मवेशी मंडी में राजा नामी बकरे, चिन्योट में राजनपुरी बकरों की धूम शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। मंडी में सफेद चमड़ी वाले राजा नामी बकरे की एंट्री शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक का कहना था, राजा की कीमत 1,80,000 रुपए है, थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लूंगा। राजा दूध पीता है और देसी खुराक खाता है।
तरह पाला है। अगर मेहनत वसूल ना हो तो दुख होता है। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा। मवेशी मंडी में राजनपुरी खूबसूरत और मोटे ताजे बकरों की धूम है। खरीदार कहते हैं जानवरों के दाम ज्यादा हैं। फैसलाबाद, खुला मोहम्मदाबाद से आए शहरी ने खूबसूरत बकरों की दो जोड़ियां 1.5 और 2.25 लाख में खरीदी। खरीदारों का कहना है इस बार मंडी काफी महंगी है। दूसरी जानिब हफ्तावार चिन्योट में लगने वाली मवेशी मंडी में सहूलियात की शदीद कमी से व्यापारी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। व्यापारियों का कहना है जानवरों के लिए सायादार जगह है, न पीने का पानी, खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। व्यापारियों ने मजीद कहा फी जानवर एंट्री 500 रुपए, गाड़ी की पार्किंग की भी फीस अलग से ली जाती है, लेकिन सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। व्यापारियों ने कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के जजेस की 34 गाड़ियों की नीलामी का फैसला। पुरानी गाड़ियां सिविल जज से वापस लेकर इनको नए मॉडल की गाड़ियां फराहम की गई थी। गाड़ियों की तब्दीली के बायस पुरानी गाड़ियां कई माह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मौजूद थीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बशीर शेख ने नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खरीदारी के ख्वाहिशमंद कल तक गाड़ियों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। 6 जुलाई को बजरिया नीलामी गाड़ियां फरोख्त की जाएंगी। डीजी माहौलियात पंजाब ज़ुहैर अब्बास का दौरा फैसलाबाद। M3 इंडस्ट्रियल जोन में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए इकदाम का जायजा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात को फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स और भट्टों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज कोड की नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश भी की गई। डीजी माहौलियात पंजाब ज़हीर अब्बास की फैसलाबाद आमद। M3 इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद सनती यूनिट्स का दौरा किया। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए। डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास ने M3 इंडस्ट्रियल जोन में चाइनीज इंडस्ट्री MIK और मेहरान इंडस्ट्रीज का भी मुआयना किया। ज़हीर अब्बास महकमा माहौलियात फैसलाबाद ऑफिस गए। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्री और स्पेशल स्क्वाड फॉर स्मोक की नाकस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। डीजी माहौलियात ने अफसरान को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दिया। मुझे अपने जो महकमा माहौल है, यहाँ पे महकमा माहौलियात का जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी कारकर्दगी देख के भी मुझे काफ़ी ली हुई। जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों से एक स्पेशल कैंपेन शुरू की है उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ कि जहाँ पे जो है एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगी हैं, तो उसमें जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतर है और मैंने कोई ऐसी ग्लेयरिंग वायलेशन जो है अपने इस विजिट में नहीं देखी। डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास ने फर्जी कार्रवाइयों की बजाय माहौल को खुशगवार बनाने के हवाले से अमली इक़दामात की हिदायत जारी की। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर साथ के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में जिला काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात ख्वानी। जिला भर से तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालीमी इदारों के अलावा मदारिस के तलबा ने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। जंग में जिला काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात ख़्वानी का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में जिला भर के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई और उनकी खुशलानी पर शुरका ने खूब सराहा। मुकाबलों में जनाब कॉलेज, MP हाई स्कूल, जामे महमूदिया समेत दीगर इदारों के तलबा और तालिबात शरीक हुए। मुकाबलों में तलबा और तालिबात की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश किए गए। इंतज़ामिया की जानिब से हुस्न क़िराअत और नात ख़्वानी के अलावा खेलों की सरगर्मियों को भी शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम तर तालीमी इदारे शमूलियत इख्तियार करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।